خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈیزل کا نرخ کم ہونے پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضلع انتظامیہ کو کرایوں میں کمی کے اقدامات کا حکم دیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ کرایوں کو ٹیرف نمایاں آویزاں کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرایہ نامے پر عمل نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ بولی کرایوں میں کمی عام آدمی کا حق ہے، استحصال کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیزل کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے، اس کے بعد پنجاب حکومت ایکٹیو نظر آتی ہے اور سیکٹری ٹرانسپورٹ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ کرایہ نامے کے حوالے سے ہم اقدامات کریں گے، اور اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ کرایوں میں کمی کی جائے، جبکہ ترمیم شدہ کرایوں کا ٹیرف نمایاں آویزاں کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرایہ نامے پر عمل نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی ہوا ہے، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرایوں میں کمی عام آدمی کا حق ہے، استحصال کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایوان اقبال میں پاکستان کی بھارت پر عسکری اور سفارتی فتوحات کے عالمی اثرات پر سیمینار۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا سیمینار کی شرکت سے خطاب۔ بولے، بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، بھارت خطے کا امن اور استحکام خراب کرنا چاہتا ہے۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاک مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے دوران ہمارے میڈیا نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ Our armed forces, leadership, brave soldiers, and airmen showed great operational readiness. They proved professional skills and sound strategy can outmatch numerical and technological advantage. The skies bore witness to this truth. Maintaining combat superiority, Pakistani Eagles shot down modern jets in quick succession, forcing the enemy to ground its entire fleet. Simultaneously, we extended the hand of peace. We proposed composite dialogue. We called for impartial international investigation into the Pahalgam incident. India's refusal to engage constructively only served to sharpen the global contrast. پاک مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کی بھارت پر عسکری اور سفارتی فتوحات کے عالمی اثرات پر سیمینار سے خطاب۔ بولے، بھارت جو بھی منصوبہ کرتا ہے ہم بر وقت اس بارے جان جاتے تھے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ جنگ کے دوران ہماری خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، جن کو ہمارے چند لوگ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی، چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے، چاہے ان کے جہاز اڑتے تھے، چاہے کوئی بھی اور ڈیٹیل تھی۔ اور اس جنگ کے جیتنے میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے، آلدو وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ان کے فیصلے، ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ تو میں ان خاموش مجاہد اور پس پردہ مجاہدوں کو آج سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، بیکاز ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ تمام تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گردوں نے مساجد، تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا۔ پاک مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پاکستان کی بھارت پر عسکری اور سفارتی فتوحات کے عالمی اثرات پر سیمینار سے خطاب۔ بولے، بھارت نے جارحیت میں معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ نے جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔
मैं ये समझता हूँ कि जहाँ लाखों अफराद लुक़मा अजल बने, शायद उनके हाफजे से वो दहशत, वो वहशत, वो बिकती मौत सबके नकूश मिट गए। आज जंग की बातें, ये जो वॉर मॉन्गरिंग है, जंगी जुनून है, चाहे कोई नस्ली इम्तियाज़ की बुनियाद पे करे, चाहे अब किसी खित्ते में अपनी हेजमनी कायम करने की बुनियाद पे करे, हिंदुस्तान इस जंगी जुनून में मुब्तला होने के बाद अपने मुल्क में हुए एक वाक़ये पर, जो कि दहशत गर्दाना है, बिल्कुल है, किसने किया, कौन नॉन स्टेट एक्टर था? मेरा पाकिस्तान का मुकदमा पिछली 3 दिहाइयों से ये है कि मेरे मुल्क में जो दहशत गर्दी होती है उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। मैं सबूत देता हूँ, आज दुनिया गवाह है, इतना अरसा गुजरने के बाद भी किसी एक सबूत शहादत के बगैर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया। दहशत गर्दी की आड़ में मसाजिद के ऊपर हमला किया गया, निहत्ती ख़वातीन को शहीद किया गया, मासूम बच्चों को शहीद किया गया। वो मसाजिद जहाँ से अल्लाह अकबर की पुकार आती थी, वहाँ पर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारकर दहशत गर्दी की आड़ में सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में अपनी हेजमनी क्रिएट करने के लिए, अपनी बर्तरी साबित करने के लिए 10 मई के जवाबी वार से पहले जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करना, ये कहना कि किसी तीसरे फरीक से इसकी आप इन्वेस्टिगेशंस कर लें, अगर 2 ममालिक आपस में नहीं मान रहे तो कोई तीसरा फरीक बीच में बैठकर इस बात को देखे। हम अपनी बात कहते हैं, जैसे मैंने अवलन अपनी बात में जिक्र किया कि 1 लाख के करीब मेरी शहादतें मेरे हाथों पे पड़ी हैं। मैंने तो मासूम बच्चों के लाशें भी अपने कंधों पर उठाए हैं APS जैसे वाक़यात में, और फिर दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। और देन आई सॉ पाकिस्तान मिलिट्रीज सुपीरियर स्किल सेट। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म, डेप्यूटी कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। आपको बता रहे हैं कि PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि मुमकिना सैलाबी ख़तरात हैं और फ्लैश फ्लडिंग के ख़तरात भी हैं, अर्बन फ्लडिंग के ख़तरात हैं, और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मुतल्लिका ऑफिसर्स को अहकाम जारी किए हैं और फील्ड में मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि दरियाओं के पाट में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला को यकीनी बनाया जाए। गाजियाबाद में पतंगबाजी अरूज पर पुलिस खामोश तमाशाई। पतंगबाजी के बाद इस इलाके में बिजली की बार बार ट्रिपिंग, धाती डोर के साथ पतंगबाजी के बायस कई जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अहले इलाका की फौरी पतंगबाजी रोकने की अपील की गई। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइए, क्या अपडेट है आपके पास? जी, लाहौर के इलाका गाजियाबाद थाने की रूट के अंदर पतंगबाजी मामूल के मुताबिक होती है और इतवार की सुबह और शाम के औकात इस वक्त फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि पतंगे सरेआम हो रही है, लेकिन लाहौर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इससे मुतलका पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इन्होंने इस इलाके में ड्रोन उड़ाए ताकि इस पतंगबाजी को रोका जा सके। जब फुटेज जारी होती है उसके बाद फौरी ये बयान जारी कर देते हैं कि इतने पतंगबाज पकड़े गए, लेकिन उससे कबल कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसका नुकसान ये, एक तो बिजली की बार बार ट्रिपिंग हो रही है, दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती हैं। धाती डोर इस्तेमाल होती है और किसी ब्रिज पर गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार को खुदा ना खास्ता अगर डोर से मुतासिर हो जाए, उस सूरत के अंदर भी नुकसान हो सकता है। मुतलका पुलिस जोन के इस हवाले से बिल्कुल गुरेज है। अहले इलाका का मुतालबा है कि पतंगबाजी को फौरी रोका जाए ताकि लोगों की, बिलखुसूस बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके जो मोटरसाइकिल सवारों को आगे टैंकियों में बैठ के सफर करते हैं। जी अली, अगर देखा जाए तो ये डोर और पतंगें लाहौर शहर के अंदर तो नहीं बनती होंगी, तो क्या हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट इतने गैर महफूज हैं कि लोग पतंगें लेकर आ भी जाते हैं, उसके बाद बेच भी दी जाती हैं? क्या इसमें मुतल्लिका इदारों की नाअहली है या इस करप्शन में सब मुलविस हैं?
कार्रवाई में ये कहते हैं कि हमने इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन लाहौर के जितने गिरदोनवा के इलाके हैं, कसूर है, खुडियाँ, दीपालपुर साइड, इसी तरह बाटापुर साइड, ये जितनी मशरकी बेल्ट है भारत के साथ साथ उस तमाम गाँव के अंदर डोरें लगती हैं, पतंगे बनती हैं और पुलिस की मिली भगत से सारा कुछ होता है। उनके बगैर तो ना एक छोटा सा धागा भी अंदर नहीं आ सकता लाहौर के। ये लाहौर में पतंगबाजी इसी तरह होती है और ऑनलाइन पतंगे जो फरोख्त होती हैं, जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं, घर में पार्सल आ जाता है मुख्तलिफ कोरियर कंपनी के जरिए। मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताया कि मार्केट में चीनी के निर्ख पर अमल करवाना इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गया। होलसेल मार्केट में चीनी महंगी होने से परचून मार्केट में चीनी गायब है। कल से चीनी के सरकारी निर्ख में 2 रुपये फी किलो इजाफा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी के निर्ख और दस्तयाबी का मामला हल न हुआ। 15 जुलाई से 1 माह के लिए नाफिज चीनी के निर्ख पर अमल न हो सका। इंतजामिया चीनी मुकर्रर निर्ख 173 रुपये फी किलो पर जबरदस्ती फरोख्त कराने की कोशिश करती रही। बादामी बाग, गड़ी शाहो, समनाबाद और गजुमता समेत शहर भर की मार्केटों में चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। कई दुकानदारों ने चीनी 173 रुपये फी किलो लिख रखा है, लेकिन पूछने पर बताया जाता है कि चीनी दस्तयाब नहीं। 15 अगस्त से सरकारी निर्ख 2 रुपये इजाफे से 175 रुपये नाफिज होना था, ताहम नया निर्ख 2 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। पीर से होलसेल मार्केट में चीनी का निर्ख 169 से बढ़कर 171 रुपये फी किलो हो जाएगा। एक्स शुगर मिल्स रेट 165 से बढ़कर 167 रुपये फी किलो हो गया। होलसेल मार्केट में मुकर्रर निर्ख पर चीनी फरोख्त कराने में इंतजामिया मुकम्मल नाकाम है। होलसेल मार्केट में चीनी 175 से 178 रुपये फी किलो रही। पीर से मार्केट में नए रेट्स पर अमल दरामद होना है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी के मुकर्रर निर्ख पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर डिवीजन में 18, सूबा भर में 339 गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि पंजाब भर में 27 अफराद गिरफ्तार, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 312 अफराद को जुर्माने किए गए। अब तक 32,965 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 2,444 अफराद गिरफ्तार, 394 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। छुट्टी के रोज भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट्स में चीनी के निर्ख की निगरानी यकीनी बना रहे हैं। महंगाई की लहर बरकरार, सब्जी और पोल्ट्री मसनूआत के रेट कम न हो सके। अशाया ज़रूरिया पर ओवर चार्जिंग ने आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। आवाम को महंगाई से निजात ना मिल सकी। टमाटर का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 से 140 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। आलू 85 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। परचून में प्याज 80, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो है। लीमू और भिंडी 200, कद्दू 100, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार है। ताहम बाज मुकामात पर ब्रायलर गोश्त मुकर्रर निर्ख से जायद पर फरोख्त हो रहा है। फार्मी अंडे 3 रुपए इजाफे से 294 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं कि एक बार फिर मार्केट में महंगाई की लहर है। मुर्गी का जो रेट है ना, वो अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गया है और अवाम जो है ना महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। महंगाई गरीब आदमी पिस के रह गया है। आगे होता था गोश्त नहीं पका सकते, दाल पका लो, दाल नहीं पका सकते, सब्जी आलू पका लो, अब उनकी रेट देखे जरा। मार्केट जराये के मुताबिक ब्रायलर के निर्ख को इंतजामिया ने जबरदस्ती लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में जायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है और ये तेजी जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मारूफ ब्रांड्स और बड़े नामों पर बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर का मशहूर केक प्रोडक्शन यूनिट, इंटरनेशनल बेवरेजेस यूनिट बंद, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। छुट्टी के रोज डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की टीमों के हमरा फूड पॉइंट्स, दूध, गोश्त की चेकिंग, 3,350 फूड पॉइंट्स यूनिट्स की चेकिंग की। 13 मुकदमा दर्ज, 11 यूनिट बंद, 419 फूड पॉइंट्स को 56 लाख 20,500 रुपए जुर्माने। इसी तरह 166 मीट शॉप्स, गोदाम और 751 डेयरी शॉप्स और सप्लायर्स की चेकिंग में 2 मुकदमा दर्ज। 247 किलो बासी खुराक, 500 लीटर दूध, 600 किलो नाकिस गोश्त और जायदुल मियाद अशिया की कसीर मिकदार तल्फ की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया अपना क़िबला दुरुस्त कर ले और मुकर्ररा कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हम आपको बताएं कि दुबई में होने वाले T20 ट्रायल सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड में जगह ना बना सके। सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद का कहना है कि किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते।
T20 ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम। पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसन नवाज स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह 17 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब रहे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली भी टीम में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सिलेक्टर आकिब जावेद का कहना है जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। फ़खर जमान के ऊपर हमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। साइम अयूब जिस तरह से यंग प्लेयर आया है और उसने इम्पैक्ट डाला है, सो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं हमारी और इसी के ऊपर हम इनको बैक करेंगे। कोई भी इंसान जो है वो ये फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा और उसी को खेलना चाहिए। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन का कहना है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 में करियर खत्म नहीं हुआ। A player like Babar has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. 3 मुल्की सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 29 अगस्त से 7 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेली जाएगी। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। लाहौर में मार्का हक नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हो गया। नौजवान खिलाड़ियों अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी में एक्शन में दिखाई देंगे। इफ्ताही तकरीब में सेक्रेटरी गैजन ग्रीन लाहौर, अतर भट्टी, डायरेक्टर PSF इरफान असगर और साबिक वर्ल्ड नंबर 3 गोगी अलाउद्दीन ने शिरकत की। लाहौर में स्क्वाश का मेला सज गया। पहले रोज दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मार्का हक नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 17 अगस्त से 20 अगस्त तक लाहौर में जारी रहेगी। इवेंट के क्वार्टर फाइनल तक के मैचेस पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर गैरिसन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जाएंगे। चैंपियनशिप में बॉयज अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरीज के मेन राउंड में 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी शामिल की गई हैं। काफ़ी अच्छा है। लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे प्लेयर निकलेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि प्लेयर्स को पाकि प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले, उनकी गेम अच्छी हो। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद मंसूर का कहना है ऐसे इवेंट्स के इनेकाल से नया टैलेंट सामने आएगा। मार्का हक का आज ओपनिंग सेरेमनी का स्टार्ट है और इसमें जिसमें लाहौर गैरिसन ग्रीन के सेक्रेटरी साहब आए हैं जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का आज शुरुआत की। इसका जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो लाहौर गैरिसन ग्रीन में ही खेला जाएगा। इवेंट की इनामी रकम फी कैटेगरी 10 लाख रुपए रखी गई है। PSA का कहना है कि लाहौर गैरिसन ग्रीन ने मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए रखकर नौजवान स्क्वाश प्लेयर्स की हौसला अफजाई की है। क्रिकेट का जुनून, छुट्टी के रोज मंचलों ने शहर में क्रिकेट मेला सजा लिया। ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा में रश लगा रहा। नौजवानों ने कदरे खुशगवार मौसम में क्रिकेट खेलकर खूब इंजॉय किया। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलने पर जोर, मंचलों ने मुख्तलिफ ग्राउंड्स का रुख किया और कदर खुशगवार मौसम में क्रिकेट का भरपूर लुत्फ उठाया। ग्रिफिन ग्राउंड मुगलपुरा में नौजवान खिलाड़ियों का रश लगा रहा। बैटर्स ने खुलकर बल्ला चलाया जबकि बॉलर्स ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया। नौजवानों का कहना था कि क्रिकेट खेलने से इंसान चुस्त रहता है। पूरा हफ्ता छुट्टी के दिन का इंतजार रहता है ताकि दोस्तों के हमरा क्रिकेट खेल सकें। क्रिकेट खेलने का बहुत मजा आता है। हम पूरा वीक भी खेलते रहते हैं और संडे को तो ज्यादा एंजॉय होता है। उसके बाद हम दोस्तों के साथ जाके तो नाश्ते वगैरह करते हैं और हमारा जिसम एक्टिव रहता है। ये संडे का दिन काफ़ी अच्छा होता है और वो खुशगवार भी होता है। खेलने को मौका मिलता है, नाश्ता करने में, दोस्तों के साथ इधर जाने उधर जाने में काफ़ी रिलैक्स होते हैं। नौजवान क्रिकेटर्स ने ग्राउंड्स की कमी का शिकवा भी किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि खेलों को फ़रोग देने के लिए मजीद ग्राउंड्स मुहैया किए जाएं।